Welcome friend. In previous video we tried to understand the concept of industrial engineering. In this video we shall discuss the concept of work study. So what is work study? What are the objectives of work study? How work study can be defined? What is the need of work study or scope of work study, the branches of work study, that will be discussed in this video. So let us see what is work study. I have some definition of work study. So let us see first the meaning of work study. Work study is a systematic, objective and critical examination of the factors affecting productivity for the purpose of improvement. I am repeating, work study is a systematic. It is the systematic, objective, it has an objective and critical examination of the factors affecting productivity for the purpose of improvement. So we need an improvement, as we had discussed in previous video of industrial engineering. We want improvement in the productivity, and for that we will have to develop a certain methodology of doing a work. So work study is this critical examination of all the factors which affects the productivity of the organization. So it makes use of techniques of method study and work measurement. So method study and work measurement are two major branches of work study, you may say. And it ensures the best possible use of human material resources in carrying out specific activity. So whatever the activities of the organizations are there, we have to use the resources, all the resources which work as an input for the production process, such as human or material resources or energy or facilities, you may say. We have to use it in such a way that there would be a best possible use. Best possible use. We may not say at particular instant that this is the best. Maybe best possible. There may be again a room for the improvement. So work study investigates the work done in an organization, and it aims at finding the best and most efficient way of using available resources. तो हमें क्या करना है वर्क स्टडी में, एक अच्छा तरीका जो कि बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है रिसोर्सेस को यूज करने का. क्यों? क्योंकि जितने अच्छे से, जितने ढंग से हम रिसोर्सेस को यूज करेंगे, उतने अच्छे से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लेस होते जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस होगा तो हम कॉम्पिटिटिव प्राइस में प्रोडक्ट को मार्केट में अवेल कर सकेंगे. यहां पे एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है, काफी बड़ी डेफिनेशन है. लेट अस सी. इट इज अ जेनरिक टर्म. एक जेनरिक टर्म है, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, स्पेसिफिक नहीं है. इट इज अ जेनरिक टर्म फॉर दोज टेक्निक्स पर्टिकुलरली मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट. मतलब मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली और दोनों को एक साथ लेकर जो भी एक टर्मिनोलॉजी है उसको वर्क स्टडी कहता है, अगर सिंपल टर्म में कहा जाए तो. फिर मेथड स्टडी क्या है, वर्क मेजरमेंट क्या है, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे. तो it is a generic term for those techniques, particularly method study and work measurement, which are used in the examination of human work.
अब हम मटेरियल लेते हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स है, मशीन्स है, टेक्नोलॉजी है, प्रोसीजर है, फैसिलिटीज है, टूल्स है, ये सब है, लेकिन उसको काम कौन कर रहा है? उस पर ह्यूमन बीइंग कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, मैन काम कर रहा है। हमें यहाँ पे क्या करना है वर्क स्टडी में? उसके एफर्ट्स कम करके, उसका फटीग कम करके, उसको कंफर्ट करके, ज्यादा से ज्यादा काम करते वक्त ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट करके ज्यादा अच्छे से उससे काम करा के लेना है। प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी वर्कर पे, किसी ह्यूमन बीइंग पे या किसी ऑपरेटर पे बहुत ज्यादा काम का ट्रेस आ रहा। तो ये कैसे करना है? इन ऑल इट कंटेन्स एंड विच लीड सिस्टमेटिकली टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स विच इफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द सिचुएशन बीइंग रिव्यूड इन ऑर्डर टू सीक इंप्रूवमेंट। मतलब हमें इंप्रूवमेंट चाहिए, वी नीड ए इंप्रूवमेंट फॉर इंप्रूवमेंट, इन्वेस्टिगेट द वर्क systematically, find out the problems, then apply the techniques of method study and work measurement. तो वर्क स्टडी जैसे कि इस डेफिनेशन से और भी क्लियर हो गया क्या है मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट. सो इट has two wings, that is the method study and work measurement. एक और डेफिनेशन हमारे पास है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन की भी. एज पर ILO, वर्क स्टडी इज अ टर्म used to embrace the techniques of method study and work measurement. मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग वे से एक ही बात रिपीट की हुई है कि वर्क स्टडी, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट का मिक्स है. ऐसा मिक्स है जो कि हमारे रिसोर्सेस को बेस्ट पॉसिबल वे से यूज करे. सो वर्क स्टडी इज अ टर्म यूज टू embrace the techniques of work study is a term used to embrace the technique of method study and work measurement which are employed to ensure the best possible use of human and material resources in carrying out a specified activity. तो वर्क स्टडी क्या करता है? क्लब करता है मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट को इस तरह से कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेस है वो अच्छे से इस्तेमाल है. वर्क स्टडीज के ऑब्जेक्टिव, वर्क स्टडी जैसे कि हमने देखा मेथड स्टडी और टाइम स्टडी या फिर वर्क मेजरमेंट का मिक्स है. तो जो ऑब्जेक्टिव मेथड स्टडी के और वर्क मेजरमेंट के रहेंगे वो मिला के वर्क स्टडी के ऑब्जेक्टिव होंगे. तो यहां पे देखो मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव ही दिया है, टू एनालाइज द प्रेजेंट मेथड ऑफ डूइंग जॉब सिस्टमेटिकली इन ऑर्डर टू डेवलप अ न्यू एंड बेटर मेथड. मेथड स्टडी क्या है कि हमें एक अच्छी बेटर मेथड फाइंड आउट करनी है, काम का तरीका निकालना है अच्छा, वो ऐसा है कि जहां पे वर्कर का, लेबर का या फिर ऑपरेटर का, जो भी व्यक्ति वहां पे काम कर रहा हो उसका कम से कम फटीग हो, उसको कम से कम परेशानी हो, उस पर कम से कम ट्रेस आए और एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट तैयार हो जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी इफिशियंसी बढ़े. मतलब वही समय में वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सके. सो इट एनालाइज द प्रेजेंट मेथड ऑफ डूइंग जॉब सिस्टमेटिकली इन ऑर्डर टू डेवलप अ न्यू एंड बेटर मेथड. आने वाले वीडियो में जब हम मेथड स्टडी देखेंगे तो उसमें और विस्तार से इसको डिस्कस करेंगे. टू मेजर द वर्क कंटेंट ऑफ अ जॉब बाय मेजरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डू जॉब फॉर अ क्वालिफाइड वर्कर एंड हेंस टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड टाइम. दिस इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट. ये एक वर्क मेजरमेंट का ऑब्जेक्टिव है. क्या करना है? हमें काम को मेजर करना है. कौन काम पे है उस वक्त जब हम काम को मेजर कर रहे हैं? क्वालिफाइड वर्कर है. क्वालिफाइड वर्कर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर अनस्किल्ड वर्कर काम कर रहा है तो नेचुरली बहुत ज्यादा काम को समय लगेगा, और बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्कर काम कर रहा है तो भी वो बहुत कम समय में वर्क कर पाएगा. और उसकी वजह से जब हम स्टैंडर्ड डेवलप करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम डेवलप करेंगे
तो बाकी जो एवरेज वर्कर्स है उस टाइम को मैच नहीं कर पाएंगे। तो जब हम वर्कर लेते हैं, जब हम वर्कर सिलेक्ट करते हैं वर्क मेजरमेंट स्टडी के लिए या टाइम स्टडी के लिए, तो हमें क्वालिफाइड वर्कर तो लेना है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस इस तरह से लेना है कि वो स्टैंडर्ड बने, और फिर उस स्टैंडर्ड टाइम को हम बाकी जगह पे उसको अप्लाई कर सकेंगे। देन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय इंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ ह्यूमन, मशीन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। जो भी है, प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, टेंजिबल प्रोडक्ट हो या इंटेंजिबल प्रोडक्ट हो, हमें क्या करना है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी? बाय यूटिलाइजिंग द ह्यूमन और अदर रिसोर्सेस, मशीन है, मटेरियल है, इन अ ऑप्टिमम वे, and we will ultimately what will happen, the minimum possible cost of production will be there. Operational efficiency हमें ओवरऑल बढ़ानी है। So these are the various objectives of our study. उसमें हम और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। इन जनरल ऑब्जेक्टिव्स है ये जो हमने अभी डिस्कस की। What are the advantages of work study? अगर हम वर्क स्टडी अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, तो क्या एडवांटेज हमें मिलेंगे? नेचुरली यूनिफॉर्म एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन फ्लो और वर्क फ्लो विल बी देयर। ये क्यों हो रहा? क्योंकि अब वर्किंग कंडीशन अच्छी है, मेथोडोलॉजी अच्छी है, लेआउट अच्छा है, वर्क स्टेशन बराबर डिजाइन किया हुआ है। ये जैसे जैसे हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करते जाएंगे वर्क स्टडी, तो ये और भी क्लियर होते जाएगा। So, uniform and improved production flow and workflow, reduction in the cost of manufacturing, reduction in the cost of manufacturing and cost of production. So here we are utilizing the best possible resources, minimum resources. We are trying to utilize the minimum resources, or you can say optimum resources. So due to this, what will happen, the cost of production or cost of manufacturing will reduce, but we have to do this not at the cost of quality. हमें कहीं पे भी क्वालिटी को कंप्रोमाइज नहीं करना है। हायर एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, सो प्रोडक्शन एफिशिएंसी विल नेचुरली इंप्रूव। फास्ट कस्टमर सर्विस, अब क्या है यहाँ पे, डिलीवरी डेट्स विल बी पॉसिबल टू मीट। जैसे कि हमने देखा कि कोई भी सिस्टम, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम 5 आवर्स पे फोकस करना चाहिए। राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम। तो राइट टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल एट अ राइट टाइम विथ एट अ राइट प्लेस ऑल्सो। तो ये एक एडवांटेज वर्क स्टडी का है। देन जॉब सेटिस्फैक्शन विल बी देयर। हाउ जॉब सेटिस्फैक्शन विल बी देयर? कैसे आएगा जॉब सेटिस्फैक्शन? क्योंकि इंप्रूव्ड वर्किंग कंडीशन है, इंसेंटिव्स बराबर मिल रहे हैं, वेजेस अच्छे से मिल रहा है, क्योंकि वर्क मेजर हो रहा है। अभी वर्क मेजर होने की वजह से दोज हु आर गुड वर्कर्स और दोज हु आर स्किल्ड वर्कर, दोज हु आर हैविंग अ गुड प्रोडक्टिविटी, दे आर गेटिंग द फेयर वेजेस, फेयर इंसेंटिव्स। तो यहाँ पे हायर वेजेस, हायर इंसेंटिव्स टू द वर्कर्स। देन इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयर रिलेशन, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयर रिलेशन, इसको हम कह सकते हैं कि बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन। एंड व्हाट विल बी द अल्टीमेट रिजल्ट? इट विल बी इन द हायर एम्प्लॉय मॉरल। एम्प्लॉय मॉरल जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो अच्छा रहेगा। So better industrial relation and results in the higher employee morale. Then reduce material handling cost. वर्क लेआउट अच्छा होगा, वर्क स्टेशन अच्छे से डिजाइन होंगे, तो जो मटेरियल में हैंडल करने में, मटेरियल को हैंडलिंग करने में, फ्रॉम वर्क
one operating station to another operating station, or from one workstation to another workstation, or from one machine to another machine, that time will be reduced, and then ultimately the cost will also be reduced. जो मटेरियल का फ्लो बार बार एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी ऐसा होता है, जो उसमें स्मूथ फ्लो आएगा. The smooth flow of material will be there, and due to this the material handling cost will also reduce. Then it provides a standard of performance to measure the labor efficiency. कि जैसे कि हमने देखा fair wages है. अब fair wages क्यों है? Because we are measuring the efficiency of the labor. How? By setting the standard. वर्क स्टडी के जो दो विंग्स है, उसमें से एक है वर्क मेजरमेंट. तो वर्क मेजरमेंट में हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं काम का. देन बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो हमने पहले ही देखा है. सो दीज आर द वेरियस एडवांटेज. टू वर्क स्टडी की क्या नीड है? व्हाट इज द नीड ऑफ वर्क स्टडी, और व्हाट इज द स्कोप ऑफ वर्क स्टडी? सो इट हैज अ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. शुरू में उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ही थे, इन ऑपरेशन, इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बट आफ्टर दैट work study nowadays it is used in marketing, sales and distribution. It can be applied in offices, store and warehouses. Means distribution also you can use the work study. Then material handling and designing the job. यहाँ पे R&D में पहले ही हमने कहा है. Then building and construction. Then transportation of goods. Hospitality industries, hotels, then travels and tourism, army, agriculture. So these are the various areas where we can use the work study. जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में कहा था कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हम अपने घर पे भी यूज कर सकते हैं. तो उसमें से वर्क स्टडी को ही ले लो. वर्क स्टडी में जो हम वर्क टेबल डिजाइन करते हैं, वर्क स्टेशन डिजाइन करते हैं, तो हमारे किचन में जो किचन का जो वर्क टेबल रहता है, जो किचन ओटा जिसको कहते हैं, इट इज द वन ऑफ द एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ अ प्रॉपरली डिजाइन वर्क स्टेशन. नाउअडेज देयर आर अ मॉड्यूलर किचन. तो मॉड्यूलर किचन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वर्क स्टडी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.